Good evening, ladies and gentlemen. Today, we celebrate the centenary of a voice that defined the golden era of Indian music, Mohammed Rafi. The king of melody. His timeless songs continue to inspire generations, transcending boundaries of language and time. This special session will explore his unmatched contributions to Indian music, the emotional depth of his singing, and the enduring legacy he left behind. Let's dive into the magic of Rafi Saab and the melodies that continue to live in our hearts. It's time now to welcome our moderator and the panelists. An award-winning poet and scholar whose work on music and cinema includes the National Film Award-winning Lata Surghata. Let's welcome our moderator for this session, Mr. Yatinder Mishra. And now, a playback and devotional music legend whose contributions have earned her a Padma Shri and the admiration of millions. Please welcome Dr. Anuradha Podwal. Up next, a visionary filmmaker who redefined Hindi cinema with iconic films like Karz and Tal. We are honored to have Mr. Subhash Ghai with us. And next, preserving the legacy of the legendary Mohammed Rafi through heartfelt performances and the Mohammed Rafi Academy. Let's hear it for Mr. Shahid Rafi. Finally, a Padma Shri awardee and one of India's most celebrated playback singers with over 4,000 songs across multiple languages. Please welcome Mr. Sonu Nigam. Let us now take a look at the centenary special video made by IFFI in the honor of the King of Melody, Shri Mohammed Rafi. आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। वो अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ गए। वो अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ गए। This line from Mohammed Rafi's first song in independent India holds a secret about the legacy he would leave behind. 7,000 songs spanning from British India to independent India. My dad was born
in Amritsar in a village called Kutla Sultan Singh. जहाँ पे वो रहते थे, जो मोहल्ले में रहते थे, वहाँ पे एक फ़कीर हमेशा उनके मोहल्ले से जाता था। तो उसकी आवाज़ मुझे इतनी अच्छी लगती थी। जब मैं वो चलता जा रहा था, मैं उसके पीछे पीछे चलता, मैं भी साथ साथ में चलता। कौन है जो सपनों में आया? Young Fico, singing along with the fakir, imitating him, was pulled into the enchanting world of music. At just 13, Rafi had his first break, singing as a backup for the legendary KL Sehgal during a performance in Lahore. एक इंसान बैठे थे हमारे ताए के बाजू में और उन्होंने कहा ये लड़का बहुत अच्छा गाता है, इसका नाम क्या है? बोले कि मेरा छोटा भाई है, नाम इसका रफ़ी है। तो उन्होंने अपना कार्ड दिया और उन्होंने कहा कि अपने लड़के को मेरे पास लेकर आना, मैं श्याम सुंदर हूँ। सजे रही गली मेरी माँ। People like Rafi Sahab are not created or made singers, they are born greats. From Lahore to Mumbai, Rafi's voice transcended boundaries and stood the test of time. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। In 1944, Rafi moved to Mumbai. An old acquaintance from Punjab, Shyam Sundar, gave Mohammed Rafi his first Hindi song for the film Gaon Ki Gori. But it was his meeting with the legendary Naushad Ali that marked a new chapter in Rafi's career, entrusting him with all the songs for Baiju Bawra, an album that became an instant hit, making Rafi visible to the world. S.D. Burman and Rafi created the iconic soundtracks for films like Pyasa, Kagaz Ke Phool, Kala Pani, Guide and Abhiman. Songs that would stay with us for generations. With a smile that never faded, Rafi took a flight in good times. Rafi Sahab was a very godly singer. He sang so many genres, you can't just pick one. Mohammed Rafi, in 1947, made his acting debut in the film Jugnu. It was in this very year that Rafi made the pivotal decision to leave Lahore behind. With a smile, embracing the future, he sang for Jugnu. He was a legend who brought together generations, languages, and cultures through his music. A legacy that will live on in every note, in every song, and in every memory of his voice. May I now request Srimati Vrunda Manohar Desai, Joint Secretary Films, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, to please join us on stage and felicitate our guests with the following. The bilingual brochure curated by Sri Yatindra Mishra. The Sari Gama Karwa featuring the 4 legends. The
IFFI Memento. May I also now request Srimati Shilpa Rao, Director Films, Ministry of INB, Government of India, to please come on stage to present the My Stamp issued by the Department of Posts to celebrate the birth centenary of Shri Mohammad Rafi and 3 other legends, Shri Raj Kapoor, Shri ANR and Shri Tapan Singha. I also call upon Ms. Firdaus Rafi, ma'am, to join the dignitaries on stage for a photograph. And not to forget our dear musicians. Ma'am, I request ma'am to please felicitate our dear musicians with the IFFI Memento. Thank you so much, ma'am, for joining us with the felicitation and the photograph. I now call upon Mr. Yatindra Mishra with a gracious request to commence the discussion. बहुत धन्यवाद इफ़ी, मिनिस्ट्री ऑफ INB, श्री मोहम्मद रफ़ी साहब की जन्म शताब्दी मनाने के लिए श्री शाहिद रफ़ी साहब का स्वागत है, सुभाष घई साहब का, अनुराधा पौडवाल जी और सोनू निगम। मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बांधूंगा, आपको सब पता है रफ़ी साहब के बारे में, आपको सब पता है इन चारों लोगों के बारे में। नौशाद साहब की एक नज़्म की 4 लाइनें जो उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को याद करते समय लिखी थी। अल्लाह अल्लाह रफ़ी की आवाज़, रूहे महमूदो जाने बज़ में अयाज, उसकी हर तान उसकी हर लय पर बजने लगते थे खुद दिलों के साज। एक बहुत सुंदर सी नज़्म है, आप गूगल सर्च करेंगे तो भी शायद मिल जाए, नहीं तो मैं आपको दे दूंगा। नौशाद साहब ने अपने समय के अपने तमाम सारे बड़े फनकारों पर बहुत सुंदर सुंदर नज़में लिखी और ये कितनी सुंदर बात है कि रफ़ी साहब को तराशने का काम भी नौशाद ने किया। थोड़ा क्रेडिट हम लोग ले सकते हैं कि हम उसी धरती से आते हैं, अवध की, जहाँ से नौशाद साहब मुंबई गए। और मैं सबका स्वागत करता हूँ। मैं सबसे पहले शाहिद साहब से सवाल करूँगा, बीच बीच में मैं कुछ कुछ बताता रहूँगा आपको। आपके वालिद नहीं चाहते थे कि उनके कोई बच्चे मौसीकी में आएँ, और वो बहुत एक रिस्ट्रिक्शन था कि इस फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आना है। आप आ ही गए और आप गाने भी लगे। तो क्या अभी ये आपको उनके जाने के बाद और जब आपने सब शुरू किया, अफसोस होता है कि काश वालिद से सीखा होता या प्रॉपर प्लेबैक सिंगिंग में आना चाहिए था? सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीबॉडी, नमस्कार, आदाब। मैं पहले सवाल का आपको जवाब देता हूँ कि
रफ़ी साहब और हमारी अम्मा नहीं चाहते थे कोई भी औलाद उनकी इस इंडस्ट्री में आए। उसकी वजह ये थी कि अब्बा ये चाहते थे कि अगर कोई भी मेरी औलाद आए तो या तो मेरे बराबर आए या तो मेरे से बढ़कर आए। वो ये नहीं चाहते थे कि मेरी औलाद मेरे से नीचे आए। तो दिस वॉज हिज थॉट। तो खैर बाप तो बाप होता है। तो एंड जब भी उन्होंने ये महसूस किया कि कोई भी बच्चा कोशिश कर रहा है या अपना इंटरेस्ट ले रहा है इस इंडस्ट्री में आने की, तो सीधा बचपन ही में ही हम लोग को लंदन भेज देते थे, वहीं पे पढ़ो वहीं पे रहो। तो आधी ज़िंदगी हमारी लंदन में गुजर गई है। अब्बा के इंतकाल के टाइम पे मैं आ गया था यहाँ पे। मॉम वॉज ऑल अलोन, अकेली थी वो। तो मैं रह गया यहाँ पे, बाकी सब भाई सब मेरे लंदन में हैं। तो मुझे बाद में लोग कहते थे, ऐसे ही अपना महफिल में बैठते थे तो बोले कि अपने यार इतने फेमस फादर हैं। उस वक्त तो हम लोग यकीन करना कि डैड के टाइम पे हमने कभी ये नहीं सोचे थे कि हमारा बाप इतना बड़ा है। आप यकीन करें, व्हेन ही वाज अलाइव कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि वो, क्योंकि हमने उनको वो नज़र से देखे नहीं थे। हमने उनको एक नज़र अपने एक पिता की नज़र से देखे थे, एक वालिद की नज़र से देखे थे, एक बाप की नज़र से देखे थे। वी नेवर थॉट कि हमारा अपना बाप बहुत बड़ा सिंगर है या कुछ ऐसा। वी रियलाइज दैट, मतलब हमारे को वो एहसास हुआ जब वो चले गए। उसके बाद ऐसा महसूस हुआ और लोगों ने जिस तरीके से मोहब्बत जाहिर किया हमारे सामने रफ़ी साहब के लिए, तब हमने महसूस किया कि यार हमारे अब्बा इतने बड़े थे। बिलीव मी, आई मीन दिस वाज आवर रिएक्शन, नॉट ओनली माइन, मेरे घर वालों में सब मेरे भाई बहन ये बोलते थे, अरे अब्बा इतने बड़े थे। मतलब इतना कभी होता नहीं था, बिकॉज वी जस्ट थॉट, यही सोचते थे कि वो हमारे पिता हैं। एंड वी रिस्पेक्टेड हिम एज अ फादर, नॉट एज अ ग्रेट सिंगर। तो मे बी वो तालीम और वो जो माँ बाप ने हमको जो सिखाए, वो शायद अपना दैट केम इन टू अस, दैट वाज इट। आपकी मॉडेस्टी है और मैं क्या बोलूं, और एक सुरीले पिता की विरासत सुरीली ही होगी ऐसा मुझे लगता है, और आपको हम लोगों ने सुना है खूब। रफ़ी साहब के लिए आप तमाम सारे उनके कदरदान बैठे होंगे। ये कभी आप ध्यान दें कि लता मंगेशकर, रफ़ी और मुकेश को भी पार्श्व गायन में कोरस में गाना पड़ा होगा। शायद कभी अनुराधा जी को और सोनू निगम जी को ये नहीं करना पड़ा हो। फिल्म इंडस्ट्री जब जवान हुई और अपने उरूज पे आई, लेकिन शुरुआती दौर में पहले आप फिल्म के लिए नौशाद साहब ने जब एक ट्रूप सॉन्ग बनाया जिसमें जूते पटक करके गाना था, हिंदुस्तान के हम हैं हिंदुस्तान हमारा, तो रफ़ी साहब उसमें एक कोरस वॉइस भी थे और अपने बूट पटक के गाए हैं। आपको यूट्यूब में वो गाना मिल जाएगा। एक शाहजहां फिल्म में उन्होंने कोरस में गाया मेरे सपनों की रानी रूही रूही, और बाद में फिर अनमोल घड़ी तक आते आते तेरा खिलौना टूटा बालक से वो आगे आते हैं। और जब 49 में दुलारी आती है, सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, तो रफ़ी साहब उस म्यार पे पहुंचते हैं जहां पहुंचना लोगों के बस का नहीं है। मैं सोनू जी से पूछना चाहूँगा, सहगल साहब का हारमोनियम किसको मिले? इसके लिए बड़ी अफरा तफरी थी कि सहगल साहब अपनी विरासत किसको देने वाले हैं। रफ़ी साहब भी इस चक्कर में, लता जी भी इस चक्कर में, मुकेश भी। और एक बड़ी सुंदर कहानी है, बाद में वो हिस्से में आया मुकेश के। क्या रफ़ी साहब की कोई ऐसी चीज़, क्या रफ़ी साहब की आवाज़ का वो फ़न आप किस तरह से अपने गाने में टटोलते हैं? वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी बारीकी है, वो कौन सी बुरकी और मिजाज और पलटे और तान गमक का कौन सा कण है जो हमेशा से सोनू निगम अपने म्यूज़िक में इनोवेट करते रहे? क्योंकि अभी आपसे बात करने के पहले मैं बहुत देर तक सुभाष जी के साथ बैठा था, तो उन्होंने कुछ बहुत अच्छी बातें आपके लिए बताई कि कैसे आप अपने एक्सप्रेशंस को इम्प्रोवाइज करते हैं, और आपके सारे कदरदान यहाँ हैं। In the light of मोहम्मद रफ़ी, the सोनू निगम एज ए प्लेबैक सिंगर। सबसे पहले आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जिनको मैंने अपना भगवान माना, जिनको मैंने अपना, मेरी पीर ही है वो। मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे लोग किसी को याद करते हैं, कुछ मानते हैं, कोई साईं बाबा को मानता है,
मैं मोहम्मद रफ़ी बाबा को मानता हूँ, तो मैंने उनको वैसे ही प्यार किया। और मेरी जर्नी की शुरुआत अनुराधा जी ने देखी हुई है, और शी इज़ द विटनेस टू मेरा जब करियर शुरू हुआ था मुंबई में 1991 में, जब मैं आया था यहाँ पे। तो मैं पहले से ही, हमारे माता और पिता ने हमको रफ़ी साहब से ऐसे मिलवाया था जैसे कोई फरिश्ता है। न केवल गाने के बारे में, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। और जितना फिर मैं इंडस्ट्री में आया, मैंने उनके बारे में मेरे बड़ों से सुना। जिन लोगों ने साथ में उनके काम कर रखा था, तब मुझे एहसास हुआ कि ये आदमी तो कुछ अलग ही विलक्षण थे और किसी ख़ास पर्पस से आए थे। इनके बारे में मैं इनसे कितना मुतासिर हुआ हूँ, कहाँ, ये मेरे ख्याल से मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी सुनने वाले ने मेरे म्यूज़िक को सुना है, वो जानता होगा कि मैंने अपने बड़ों से और ख़ास तौर से रफ़ी साहब से कितना इन्फ्लुएंस मैं हुआ हूँ, कितना मैंने उनसे सीखा है, कितना मैंने अपने संगीत में उसे अपनाया है। एक बहुत बड़ा फ़र्क जो रफ़ी साहब लेकर आए गायकी में, क्योंकि ये मत भूलिए कि उस समय पार्श्व गायकी नई आई थी। हमारे पास तो रेफरेंस पॉइंट बहुत सारे हैं। हम सुनने के लिए हमारे पास में कैसेट सीडीज़ थे, अब यूट्यूब में जो चाहे सुन लेते हम लोग। इन लोगों के पास में रेफरेंस पॉइंट नहीं था। तो ये जो किया, ये इनको आमद आई है कि कैसे फूल को फूल की तरह बोलना है, जोश को जोश की तरह बोलना है। देश का गाना गाना है तो देश की बात आनी चाहिए, और प्यार का गाना गाना है तो प्यार की बात आनी चाहिए। गज़ल गा रहे हैं तो गज़ल का ठहराव आना चाहिए। भजन गा रहे हैं तो लगना चाहिए कि हिंदू पंडित बैठ के भजन गा रहा है। और जब हमद और नाद गाएंगे या कव्वाली गाएंगे, लगेगा पक्का मुसलमान ऐसे गा रहा है, अपने मौला के लिए, अपने अल्लाह के लिए गा रहा है। तो ये बंदे अलग ही थे। ये शायद क्योंकि ये इतने सच्चे थे अंदर से, ये कोई भी गाने को गाते थे तो ये उसमें मिल जाते थे। द सॉन्ग बिकेम द सिंगर, ऐसे हो जाता था। सो रफ़ी साहब ने गानों में अदायगी लाने का जो चलन था, ये पहले सर्वप्रथम वही थे। उसके पहले लोग बहुत अच्छा गाते थे, बहुत ही प्यारे गाते थे। सहगल साहब को तो मैं बोलता हूँ द ग्रैंड फादर ऑफ प्लेबैक सिंगर्स। सब उनके ही, मतलब वो एक वृक्ष हैं और सब उनकी टहनियों की तरह निकले हैं। सब ने उनसे इंस्पायर होकर कुछ ना कुछ सीखा है। रफ़ी साहब फिर सब अपने अपने अलग बन गए। किशोर कुमार जी अलग बन गए, मुकेश जी अलग बन गए, रफ़ी साहब अलग बन गए। रफ़ी साहब ने जो रास्ता पकड़ा वो था गाने में अदायगी का। आपको पता चल जाता था, अगर आपको लैंग्वेज भी ना पता हो, उर्दू हिंदी नहीं पता हो, तो भी आपको पता होगा ये गाना सैड है, ये गाना खुशी है। यहाँ पे किसी की तारीफ हो रही होगी, पक्का कोई लड़की के बारे में कोई खास बात हो रही है, तो ये गाना शायद किसी बात से रो रहा है आदमी, क्या इसकी बेटी पैदा हो रही है, क्या ये ऐसा हो रहा है क्या कुछ। तो ये अगर आपको शब्द ना पता हो, गाने वाले की गायकी से आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये रफ़ी साहब ने किया सबसे पहले। बहुत सुंदर सोनू जी। मैं इसी क्रम में अनुराधा जी से चाहूँगा कि उन्होंने उनके साथ कुछ बहुत मशहूर डुएट गाए हैं, पायलिया चमकी और मेरी माथी की बिंदिया। एक को सिंगर की तरह, एक सपोर्ट, मतलब एक साथी पार्श्व गायक की तरह कैसे याद करती हैं, और श्रोताओं दर्शकों को ये भी बताएं कि एनालॉग पैटर्न का म्यूजिक होता था, सब साथ होता था, अब तो सब डिजिटल हो गया, ऑटो ट्यून हो गया उस दौर में, और आप लोग भी नए नए थे, तो वो क्या अनुभव हैं आपके? आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मेरे लिए एक बहुत ही ऑनर की बात है कि रफ़ी साहब के बारे में कुछ कहने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। मैं इसे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद समझती हूँ कि रफ़ी साहब के साथ मुझे तकरीबन 35 गाने गाने को मिले, और बहुत खूबसूरत मेमोरीज़ हैं। सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि इतने हम्बल और इतने नॉन एज्यूमिंग, डाउन टू अर्थ शायद ही कोई होगा जैसे रफ़ी साहब थे। वो उन दिनों की बात है जब सब लाइव रिकॉर्डिंग होती थी और एक ही कमरे में हम मिस डायरेक्टर रफ़ी साहब, मैं, हम बैठ के रिहर्सल करते थे। तो यकीन करिए कि रफ़ी साहब अगर यहाँ बैठे हैं तो यहाँ तक उनकी आवाज़ नहीं आती थी।
ही वॉज सो सॉफ्ट स्पोकन। और सुभाष जी, यू नो, हम लोग जब हमने कर्ज के लिए गाना रिकॉर्ड किया था, तो उनका एक ख़ास अंदाज था कि किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर जब वो सिखाते थे तो वो झुक करके गाना सीखते थे, विच इज़ अ वेरी वेरी रेयर थिंग, क्योंकि वो तो ही वॉज लाइक नंबर 1। तो इतने झुकाव से और इतने प्रेम से और इतने सॉफ्टली गाते थे। मैं बहुत नई थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो मुझे लगता था कि इतनी धीरे से बात कर रहे, इतने धीरे से गा रहे माइक्रोफोन में, तो आवाज़ क्या आती होगी वहाँ पे। तो मैंने एक ऐसी रिकॉर्डिंग थी जहाँ मैं महबूब स्टूडियो में अंदर से जाके सुना, तो मुझे लगा कि पता नहीं एक शेर है कि एक बड़ा सा माउंटेन है जो उनकी आवाज़ थी। तो उनका जो थ्रो था, उनका जो उनकी एक स्पेशलिटी थी, वो उनके थ्रो में थी। जिस तरह से वो आवाज़ फेंकते थे कि बहुत ज़्यादा वैसे स्ट्रेस नहीं करके जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट आता था। दूसरी खासियत उनकी ये थी कि उनका कोई भी गाना उठा लो तो ये आप कह सकते कि ये गाना किस पे फिल्माया गया है। क्या बात है। मतलब उसमें कई बार होता है कि सिंगर जब गाते हैं तो सिंगर की पर्सनालिटी दिखती है। इनके गाने में पता चलता था कि जॉनी वॉकर गा रहे हैं, धर्मेंद्र जी का गाना है या तो फिर देवानंद जी का गाना है। अगर याहू होता था तो शम्मी कपूर का ही गाना था वो। तो दिस वाज, मतलब ये बहुत ही उनकी खूबी थी। और तो उनके बारे में जितना बोलो कम है। आई थिंक मैक्सिमम गाने सुभाष जी के लिए मैं सुभाष जी तक आ रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा कि उनकी कुछ हरकत या आप अपने साथ का कोई उनका ड्यूएट 2 लाइन ही गुनगुना दें। सुभाष जी का ही गाना मैं कुछ लाइंस जो मैंने कर्ज के लिए गाए थे,